السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوشہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے ہم ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ جی ایچ کیو میں مارکہ حق کی یاد میں منعقد کی گئی خصوصی تقریب میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دشمن کی ناقابل فراموش شکست اور ذلت کا قصہ سنا دیا۔ خبردار کیا کہ پاکستان کے خلاف آئندہ مہم جوئی کے اثرات انتہائی خطرناک اور دور رس ہوں گے۔ مارکہ حق صرف دو ممالک کی جنگ نہ تھی، بلکہ یہ دو نظریات کے درمیان فیصلہ کن مارکہ تھا۔ آج کا دن ہم سب کے لیے باعث افتخار ہے۔ شہداء کی قربانی کو امانت، طاقت کو ذمہ داری، کامیابی کو خدائے بزرگوں برتر کا احسان سمجھتے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے شہداء مارکہ حق کو یادگار جملوں میں شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ ہمارے دشمن یہ جان لیں کہ پاکستان کے خلاف آئندہ کسی بھی مہم جوئی کی کوشش کی گئی تو اس بار جنگ کے اثرات محدود نہیں بلکہ انتہائی وسیع، خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ بے مثال کامیابی کا سال مکمل ہونے پر بھارت کو خبردار اور افغانستان کو تنبیہ کی۔ افغانستان سے پاکستان کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ وہ ہندوستان کی ایما پر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پشپناہی بند کرے اور اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور اماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے۔ فیلڈ مارشل نے ایک بار پھر کشمیر کو پاکستان کا اٹوٹ انگ قرار دیا۔ آج کے دن ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو قطعاً فراموش نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی کوئی بھی داستان کشمیر کے بغیر ادھوری ہے۔ بھارت کی ریاستی بربریت اور جبر سے آزادی کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا ناگزیر ہے۔ امریکہ ایران جنگ پر پاکستان کے تشخص کی بھی خوب وضاحت کی۔ اقوام عالم نے جنگ بندی کرانے اور فریقین کو مذاکرات کے ذریعے خطے اور دنیا کو ایک ہولناک تباہی سے بچانے کی پاکستانی کوششوں کو سراہا ہے۔ اس کامیاب سفارتی کاوش نے پاکستان کو حقیقی امن ساز ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر واضح طور پر نمایاں کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کامیاب سفارتکاری پر قومی قیادت کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا، آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستان کے مشکور ہیں۔ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں جارحیت مسلط کی۔ بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان کا رد عمل تاریخ کا سنہری باب ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا مارکہ حق کی تقریب سے خطاب، کہا کہ 10 مئی ملکی تاریخ کا روشن باب ہے۔ بھارتی قیادت نے اپنی عوام کو گمراہ کرتے ہوئے جارحیت کا راستہ اپنایا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج پاکستان نے اپنی مہارت ثابت کی۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن پر اپنی دھاک بٹھائی، دشمن کے 8 طیارے گرائے۔ پاکستان ہمیشہ امن کا دائی رہا ہے۔ Yet chose unprovoked aggression on the basis of false flag of Pelgram incident and launched an airstrike on Pakistan's civilian and worship places without any justification. India's media misled the nation by projecting fabricated stories and dreams. Our nation and armed forces, under the dynamic leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, gave a calibrated and shocking response to the Indian aggression. Our Air Force downed 8 enemy aircrafts during the conflict, delivering a response that became a defining moment of the resolve and national pride. مارکہ حق عظیم فتح ہے، اللہ نے اس دن پاکستان کو سرخرو کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو شاندار خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تاریخ فیلڈ مارشل کی دانشمندانہ دلیرانہ قیادت کو سنہری حروف میں یاد رکھے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مارکہ حق کی تقریب سے خطاب۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मार्का हक़ की तक़रीब से खिताब। उन्होंने कहा कि पूरी कौम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सलाम पेश करती है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का जिक्र ना करूँ तो तारीख़ अधूरी रहेगी। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब, सदर ट्रंप और दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि बुज़दिल दुश्मन ने रात में मस्जिद और शहरियों को निशाना बनाकर जंग मुसल्लत की। हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने बुज़दिल दुश्मन को भरपूर मुँह तोड़ जवाब दिया। मार्का हक़ में हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा था। दुश्मन ने 4 घंटे में जंग बंदी की दरख्वास्त की। मैं यहाँ पर अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस मार्के में शुजाअत और बहादुरी के नए बाब रकम किए। बहादुरी की ये दास्तान उस वक्त तक नामुकम्मल रहेगी अगर मैं यहाँ पर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और इनके शाहीनों का शानदार अल्फाज में जिक्र न करूँ। मैं बिलखसूस अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने खित्ते में अमन और करोड़ों इंसानों की जिंदगियां बचाने के लिए एक तारीखी किरदार अदा किया। अगर अंदाजा फरमाएं ख्वातीन व हज़रात, अगर 2 एटमी ममालिक के दरमियान जंग के शोले मजीद बढ़ जाते तो फिर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि नतीजा कितना भयानक निकलता। यहाँ पर मैं बरादर ममालिक सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज, तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोआन और दीगर दोस्त ममालिक का तहे दिल से मशकूर हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर तायीद करते हुए हक का साथ दिया। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा, हमें अपने शोहदा पर फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की मार्का हक़ के 1 साल मुकम्मल होने पर वाघा बॉर्डर पर हाज़री तकरीब से खिताब। कहा कि शोहदा की माओ को भी सलाम पेश करती हूँ। नवाज शरीफ को भी सलाम, जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी सलाम पेश करती हूँ। पाकिस्तान का अमन और सलामती हमारी रेड लाइन है। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा भी लगा दिया। हक में फतह पर आप सबको, पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम शुहदा को पाकिस्तानी कौम का सलाम। स्टैंडिंग ओवेशन देती है ये कौम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को। 22 करोड़ 25 करोड़ पाकिस्तानियों की अमानत को अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानते हुए बेहतरीन तरीके से उस अमानत की हिफाजत की। आज मोहम्मद नवाज शरीफ को भी भेजी हुई है, जिसने भी इस रेड लाइन को क्रॉस करने का ख्वाब देखा, पाकिस्तान ने उसका गरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मार्का हक़ की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर लाहौर वाघा बॉर्डर पर शानदार तकरीब का इनेकाद। आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने भी बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और यादगार शोहदा पर फूल रखे। फातिहा खानी भी की। पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों ने शानदार परेड की। शुरका का खूब लहू गरमाया। बूटों की धमक से दुश्मन पर हैबत तारी। अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन भी पेश किया गया। खबर देंगे आपको कि फील्ड मार्शल ने अभी बताया ईरान का जवाब मौसूल हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंग के खात्मे की अमरीकी तजवीज़ पर ईरान का जवाब मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। कहा कि ब्रादर हमसाया मुल्क ईरान में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान अपनी सलाहियतें बरूएकार ला रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि अमेरिका ईरान की क़यादत बिलखुसूस अमरीकी सदर के मशकूर हैं कि उन्होंने इस मुश्किल काम के लिए पाकिस्तान पर एतमाद किया है। हम अपनी मुखलिसाना काविशों से इस एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान मौसर जिम्मेदाराना गैर जानिबदार सिफारतकारी से तारीख़ी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक एक और सख्त बयान सामने आ गया। अल अरेबिया को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमरीकी स्पेस फोर्स ईरान की अफजूदा यूरेनियम तनसीबात पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। ईरान की अफजूदा यूरेनियम ज़ेरे ज़मीन मलबे में दबी हुई है, लेकिन अमरीकी सैटेलाइट और खलाई निगरानी का निज़ाम हर सरगर्मी को मॉनिटर कर रहा है। अगर कोई भी इन मकामात के करीब जाने की कोशिश करेगा तो हम फौरी कार्रवाई करके तबाह कर देंगे।
खबर देंगे आपको कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में 34 रन पर बढ़तरी हासिल हो गई है। मीरपुर ढाका में तीसरे रोज पाकिस्तान टीम 413 रन के जवाब में 386 रन बनाकर आउट हो गई। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि पहला टेस्ट खेलने वाले अजान अवैस ने सेंचुरी स्कोर करते हुए 103 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला फजल ने 60, मोहम्मद रिजवान ने 59 और सलमान आगा ने 58 रन स्कोर किए। कप्तान शान मसूद ने 9, सऊद शकील 0 और शाहीन शाह अफरीदी ने 13 रन बनाए। बारिश के सबब खेल काफ़ी देर तक रुका रहा। बांग्लादेश की जानिब से स्पिनर मेहदी हसन ने 5 विकेटें हासिल की। खेल खत्म होने तक मेज़बान टीम ने दूसरी इनिंग में बगैर किसी रन के नुकसान पर 7 रन बनाए। मदर्स डे के मौके पर पाकिस्तानी खातून क्रिकेटर आयशा जफर की साथी खिलाड़ियों से बातचीत। पाकिस्तान टीम तक के सफ़र में वालिदा के किरदार से मुतालिक गुफ्तगू की। विमेन प्लेयर ने बताया कि उनको हर कदम माँ जैसी अजीम हस्ती की भरपूर सपोर्ट हासिल रही है। पहले उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था, लेकिन फिर जब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने देखा कि मेरा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है, फिर खुद ही सपोर्ट करना शुरू हो गई। शुरू से ही सिर्फ अम्मी ने सपोर्ट किया है और मेरा भाई भी नहीं चाहता था, मेरा अब्बा भी नहीं चाहता था। पहले तो वो बहुत खुश थी क्योंकि मैच से पहले मेरी ज़्यादातर उनको सिर्फ इतना ही बताती हूँ कि आज मैच है, लेकिन वो मेरा मैच नहीं देखती क्योंकि उनको लगता है कि मैं देखती हूँ तो आउट हो जाती है। वो अपनी जॉब के बाद आके मेरी प्रैक्टिस पे बैठी रहती थी और शी सपोर्टेड मी थ्रू आउट एंड शी स्टिल सपोर्ट्स मी। हैप्पी मदर्स डे। कि हम सब डिस्कस करेंगे कि उनकी मदर्स ने उनको किस तरह से सपोर्ट किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।